Namaskar, viewers. Today we have Dr. Vijaynath Mishra with us. The reason I'm talking to Doctor today is all of us have seen, many of us have seen that he takes a early morning walk to Varanasi Ghats, and whoever comes in his way, he's treating them. Whether it is people who are cleaning the ghat, whether it is people who are collecting bones, any other thing. So those people who cannot afford to visit a doctor or who cannot even understand that they have some sort of a difficulties, he is the one he who being a doctor and also a sensitive personality goes across and reaches to them and treating them. So what is the purpose of today's talk is not about patient talking to doctor. We want to know how the general health of Indian citizens can be improved through various ways, whether the technology and medicine blending together, whether people coming together, or the medical experts forming one network and reaching out to the remote areas. What can be the solution so that in coming 25 years we can build a strong health domain, and as we say in Sanskrit, that if our mind and body is sound, then we are able to perform any activity. So, Shariram Adya Khulu Dharma Sadhanam. Unless the body is not succumb to do the activities, how can we do any other activity, either for the family or the society or for nation? So, this is the purpose of today's talk. And as I said, I'm very happy and privileged to welcome Dr. Vijay Nath Mishra ji. Doctor is a faculty and a head of neurology in BHU, that is Banaras Hindu University, and he is a practicing doctor as well as education and research, especially is his another passionate area. So, Doctor Saab, welcome and suswagatam to हमारा कार्यक्रम. Thank you. I am privileged to be here. धन्यवाद डॉक्टर, प्लेजर इज ऑल माइन. सो डॉक्टर, जैसे हमने कहा कि यू नो we are so busy in our daily life and activity कि we do not realize that there is some signal that my body is giving, but I simply want to ignore it. And especially the first thing, very normal thing I'm asking you is um, seasonal changes that generally people face. And cough, cold, sinus, fever, allergy, uh, they are treatable. At the same time, if somebody already has some sort of a acute health issue, this together causes a major fatality and more challenges. So, to avoid that or to treat it in a meticulous manner, what is that will be your advice? Season do have a lot of influence around human body and especially brain. Yeah. We do had like a circadian rhythm, you know, about the morning and evening and then the night whole system. Body is fully aware of these systems. So we have one of our sensitive body, which is known as pineal gland, which is our own clock, human body's clock. So every around midnight, it is most active, and also about the growth hormone and the body metabolism, that we say internal milieu, environment within. So we have like secretion of growth hormone in midnight. It makes sure that our body and mind and then the growing brain and the growing body do come in a condition of a normalized phenomenon. Now, when winter sets in, we do have less sunlight. When summer sets in, we do have longer sunlight. Yes. So, lesser sunlight means we do have lesser sun exposure. Now, lesser sun exposure have its own problems. Of one of the major problem is the mental instability, like we say depression. When we have low sun, maybe in evening time, you can see, observe all these emotional feelings, especially the low mental abilities, the depression, it sets in. Okay. It's a normal phenomenon. When sun goes down, there is a tendency of in birds to go back to their home. Home is the one which makes the body more comfortable.
Now in present era, we do have problems of 24-hour working pattern. Somebody is working in morning, somebody is working in night, some late night. So professional in our own this present era, they do have problem with the season, especially with the daytime and nighttime variation. And then whole 365 days, we do have, like in northern India, we do have extremes of temperature. Maybe in South India, we don't have too much extreme. Yes, it's moderate. Yeah, we have around 25 to 35 degree temperature Ji. till Mumbai. But when you come towards north, we do have a 48, 50 degree temperature in summer, and then it dips around Yes, 1 or 2 degree in winter. winter, yes. This great variation in India, it causes like when you see about sinusitis, Haji. then you have pneumonias, which comes up. Then the community-based pneumonia, it's have own other problem. Ji. In rainy season, especially in northern India, when we have a bit humid environment and lot of mosquitoes, you see Aedes mosquito, Yes. which spreads almost dengue, chikungunya, yellow fever, so many of disease. Yes, sir. Now they have their own pockets. So we do have seasonal variation, and season do have impact on human body. Right. So we have to be really cautious and alert कि ये change होने वाला है, तो we have to be more careful about some medicine, some eating habits. क्या बताएंगे आप? Yeah, what I feel कि आप जैसे किसी भी तरीके से आप जीवन में, चाहे वो गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, आपको कुछ चीजें फॉलो करनी चाहिए. जैसे सुबह का व्यायाम, जैसे वो मॉर्निंग वॉक है, चाहे जॉगिंग है. फिर सुबह आप अपने जैसे those people who are more religious, I am not saying those who are not religious, they don't have, they do have problem, but it is a scientific basis. जिसमें Professor Gauri Devi's work on religiosity and life longevity. She was the former director of NIMHANS Bangalore, and she is one of the most eminent neurologists at this time in India. So she performed one study where she could show that people with motor neuron disease, those who were in for dying condition, they do have longer longevity, those who were religious. So रिलीजियस होना मतलब ये नहीं कि आप दिन भर मंदिर घूमते रहिए. आप अपने घर में, अपने दिल में, अपना जो जिसको भी आप ईश्वर मानते हैं, आपके शरीर में ही ईश्वर है. आप उसी का सम्मान करिए, आप भजन करिए, आप मंदिर जाइए. दूसरा, व्यायाम करना कोई किसी धर्म की बात नहीं है, सभी धर्म को व्यायाम करना चाहिए. आप फ्रेश फ्रूट खाइए, हेल्दी डाइट खाइए. अभी आपने देखा होगा बच्चों में एक जो हैबिट आ रही है कि जो घोटने वाली चीजें हैं, जैसे फास्ट फूड कहते हैं, जिनका माउथ में बहुत टाइम कम रहता है, चबाने वाला नहीं, बस मुंह में लिया, पास्ता, मैगी, पिज्जा, आइसक्रीम, सब केवल घोट लिया, किसी भी तरीके से वो बाहर नहीं आया, तो चबाने की हैबिट चली गई. आपको जान के आश्चर्य होगा, आपके बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनमें 32 दांत नहीं, अब उनमें 28 दांत हो रहे हैं, क्योंकि वो चबाना जो ईटिंग फूड्स थे, जिनको हम कहते हैं इंडियन रॉ फूड, उसका हैबिट जा रहा है. ये हमारे पेरेंट्स की जरूरत है कि जो घोटने वाली चीजें हैं, खा तो लिया जल्दी, बट इट गिव्स एनॉर्मस कैलोरी, और एक्सरसाइज नहीं करते तो बच्चे मोटे हो जाते हैं, ओबेस हो रहे हैं. ओबेसिटी इज अनदर प्रॉब्लम. थर्ड, जो गर्ल्स में एक बहुत बड़ी टेंडेंसी देखी जा रही है, जीरो फिगर टेंडेंसी. अभी वो जीरो फिगर के लिए उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया. So there is another problem which comes as anorexia nervosa. It is basically a psychiatric problem, जिसमें even at weight of 35 or 30, they feel कि अभी भी बहुत मोटे हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं खा रहे हैं. So these are the patient who lands up in having tuberculosis, having malnutrition related disorder, having immunity problem. So that is second problem. And third problem, कि because of low calcium or milk intake, हड्डियां बहुत कमजोर हो रही हैं. So at age of 20 or 16 or 22,
those who are going for like their professional life or for married life, especially in women, osteoporosis is so severe that in younger age, tender age of 18, 16, 20, people are having severe backache. आप देखिए तो बहुत बच्चों में बैकएक करके वो जगह जगह हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। Oh my God. प्रॉब्लम हॉस्पिटल में नहीं सॉल्व होगा, नहीं, सॉल्व होगा आपके घर पर। घर पर और जी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पेरेंट्स की है। पेरेंट्स की है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को 3 चीजें आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ बतानी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पहला, ईटिंग हैबिट्स में चबाने वाली चीजें खाइए, जैसे फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, फ्रेश सब्जी है, इवन आपके जो राइस एंड चपाती इन डेफिनेट क्वांटिटी आप उसको लीजिए। दूसरा, अवॉइड फास्ट फूड्स जिसमें आपको चबाना ना पड़े, आपने लिया मुंह में घोट गए, फास्ट फूड जल्दी वाला। तीसरा, इवन इन दिस चाउमीन एंड ऑल एक केमिकल आता है अजीनोमोटो, जिससे सीजर्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है, एपिलेप्सी। चौथा आपको बताया मिल्क इनटेक। और पांचवा जो सबसे जरूरी है कि अपने बच्चों को बिहेवियर आप ध्यान दीजिए कि बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बच्चे हैं अपने घर में बैठ के रो रहे हो, सुबह शाम डिप्रेस हो गए, फैमिली से टाइम कट के अलग से बैठ गए। इधर फैमिली बैठी है ड्राइंग रूम में, वो बैठ गए अपने कमरे में। वो कमरे में माँ बाप सोच रहे हैं कि अपने कमरे में मोबाइल चला रहा है, उधर पता नहीं वो रो रहा है कि मोबाइल चला रहा है कि किसी और से कहीं गलत ट्रैक पर। तो महानगरों में अलग प्रॉब्लम है एडिक्शन का। इस एज में खाने पीने के लिए कह गए कि मैं जा रहा हूं बाहर, एडिक्शन स्पेशली इन 3 cities आई विल टेल यू, बैंगलोर, मुंबई एंड चेन्नई। स्टूडेंट्स वहां बहुत जाते हैं पूरे देश से। एडिक्शन प्रॉब्लम अभी उधर हाल ही में रिपोर्ट भी आई, बहुत ज्यादा है। और एक और जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज इंटरनेट रिलेटेड यूज एंड देयर डिसऑर्डर्स। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है रिलेशनशिप्स की, कि आपने जो डिजिटल रिलेशन है उसको बच्चे समझ जाते हैं कि ये रियल रिलेशन है, एंड देन विदाउट नोइंग द कॉम्प्लिकेशन बच्चे सेल्फ मेडिकेशन, देन यूज ऑफ अल्कोहल, यूज ऑफ एडिक्शन, एंड देन द रिलेशनशिप्स। तो पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी है। मैं एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होकर कह रहा हूं कि मैं अपने जीवन में कई चीजें इस चीज को फील करता हूं कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बिहेवियर, बच्चों के बिहेवियर, खाने पीने की, बातचीत करने की और शब्दों की। आपने देखा होगा जो बच्चे कई अच्छे बच्चे थे घर में, वो गाली देने लगे, मारपीट करने लगे, सोसाइटी में नीचे उतरे तो उधर भी मारपीट हो गई। ये बिहेवियर कहाँ से आया? बिकॉज हमने उनको एक ऐसा अलाउ किया है जिसमें अनलिमिटेड। तो एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा कि इन 2018 आई फेस दिस प्रॉब्लम विथ माय पेशेंट्स। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आपको हम ऐसा एक वो स्विच ओवर प्रोग्राम हम आपको बताएंगे जिसमें आप खोलेंगे एडल्ट साइट, खुलेगा भजन का साइट। आप खोलेंगे एडल्ट साइट, खुलेगा अजान का साइट, गुरुवाणी का साइट। आप यू चूज योर रिलीजन। It was the first switchover program, and we gave it name of harharmahadev.com. That was very popular in 2018. We faced lot of problem from the adult side, but still it is there. It is one of the precaution which every parent should take. Yes, makes sense. But another problem I want to talk about and which we should address. हम लोग केवल प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करना चाहते, हम उसका सोल्यूशन भी देना चाहते हैं। कि जो लाइफस्टाइल की आप बात कर रहे हैं सर, वो नॉट ओनली चिल्ड्रन, पेरेंट्स की भी वही हाल है, क्योंकि दे हैव टू रन फ्रॉम कॉर्नर टू अर्न देयर ब्रेड। तो उसमें दे आर ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर हेल्थ, एंड एडिक्शन टू अल्कोहल एंड टोबैको इज अनदर चैलेंज दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू। सो जब हम जनरल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो women health is another important area where I want you to give some wisdom which is very ignored. और पहले क्या था, इग्नोर केवल इसलिए था कि
सेकेंडरी स्टाटा था, इसलिए इग्नोर था. अब ऐसा हुआ है कि दे आर एट पार विद ऑल काइंड ऑफ एडिक्शन विद मेन, एंड इन द नेम ऑफ प्रोफेशनलिज्म और इन द नेम ऑफ फ्रीडम वो सब कुछ कर रहे हैं जो पहले शायद नहीं करते थे. लेकिन अब वो भी एकदम राइज में आ गया है और उनकी हेल्थ इज अनदर चैलेंज. तो थोड़ा उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मैं पिछले हफ्ते मिर्जापुर के गांव में एक कैंप में गया था. उधर कैंप में हमने कहा कि आज दो तरह का कैंप लगेगा. एक तो शराब छुड़ाने वाला, दूसरा वो जनरल एग्जामिनेशन एंड एपिलेप्सी, ट्यूबरकुलोसिस पूरे. तो एक कैंप में एक महिला आई जो सबसे अंत में आई, और लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब ये यहाँ के बहुत मानिंद घर की महिला हैं, आना नहीं चाहती थी, लेकिन आपके बारे में बहुत सुना तो ये आ गई, तो ये आपसे अलग से बात करेंगी. मैंने कहा अलग से ठीक है, इनकी सहेली को ही बुला दो. उनकी उम्र करीब 55-60 थी. उनके साथ भी उनके एक कोई और बैठे थे. कहा डॉक्टर साहब इनकी बाकी चीजें तो ठीक है, इनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये ड्रिंक्स बहुत ले लेती है. और ये मैं बता रहा हूँ गांव की लेडी की, कोई ऐसे बाहर नहीं. और अभी प्रॉब्लम क्या है, खांसी बहुत आ रही है. तो मैंने कहा ड्रिंक ले लेती हैं तो कुछ और भी दिक्कत है? कहा डॉक्टर साहब ये बीड़ी बहुत पीती हैं. तो मैंने कहा अच्छा, ड्रिंक्स ले रही हैं, बीड़ी ले रही हैं, इनका चेस्ट वगैरह एग्जामिन कराया. तो वहाँ एक्सरे की फैसिलिटी नहीं थी. वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर एक्सरे फैसिलिटी थी. मैंने उनसे कहा तुम एक्सरे करा लो, अभी मैं 1 घंटे और हूँ. कैन यू रिमेम्बर, आज से बहुत साल पहले एक एडवर्टीजमेंट आता था जिसमें फीमेल हेल्थ के बारे में कई चीजें बताई जाती थी. मुझे वो याद आ गया जब वो बताया कि डॉक्टर, वो पूरा चेस्ट फुल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस था. उनको हॉस्पिटल में ले आया तो शी हैड लिवर सिरोसिस, द टर्मिनल स्टेज ऑलरेडी शी. तो दो चीजें जब मैंने देखा तो मैंने फिर ये कहा कि इधर कैंप लगाने से फायदा नहीं है, घर घर स्क्रीनिंग करो. अभी घर घर स्क्रीनिंग करने के लिए डॉक्टर कम है. तो मैंने ये आपसे अभी बता रहा हूँ कि मैंने विचार किया कि ये घर घर जो गाना सुन रहे हैं, रील देख रहे हैं, तो इनको इस तरीके का रील इनके मोबाइल फोन वगैरह में डलवाओ, गाना डलवाओ कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा. क्योंकि आजकल रील्स की बहुत परंपरा है जी. इवन बच्चे बूढ़े सभी रील्स देख रहे हैं 60-60 मिनट सेकंड के. तो मैंने उसके लिए एक विलेज हेल्थ मिशन जिसके साथ हम काम करते हैं, उनसे मैंने अनुरोध किया है कि आप हर सब्जेक्ट पर 10-10, 20-20 रील बनवाओ इन वेरियस लैंग्वेजेस. उधर हिंदी में, कन्नड़ में, तमिल में, सिंधी में, सब में बनवाओ. बिकॉज दीज आर द रैम्पेंट प्रॉब्लम जिसको आप कहते हैं एडिक्शन. दूसरा जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है वो देखिए सब जगह, चाहे वो आप सोचिए घर में, गांव में, शहर में, दोनों जगह. पहले गांव में औरतें या आदमी सब काम बहुत करते थे. आजकल उनको पैसे बहुत मिल जाते हैं फ्री में, या आपको कोई नहीं, आपको पैसा मिल रहा है, आप खाना खाइए. अब वो न बोझ उठाना चाहते हैं, न वो अपना जो हल कुदाल चलाना चाहते हैं, वो भी ट्रैक्टर से चल रहा है. महानगरों में प्रॉब्लम क्या है कि लिफ्ट इज अनदर प्रॉब्लम. कोई सीढ़ी से चढ़ना नहीं चाहता. आपकी बोन्स, देखिए बोन्स का क्या है कि जितना आप उसको स्ट्रेस देंगी उतना उसमें कैल्शियम रहेगा. तो दिस इज समथिंग वेरी यूनिवर्सल फिनोमिनन कि इफ यू डोंट वर्क ऑन योर एक्सरसाइज एंड मसल्स, बोन विल बिकम लूजन. एंड एक प्रश्न, सॉरी टू इंटरप्ट, एक मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट करना है. यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया है कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में जो डॉक्टर्स है वो एडवाइस करते हैं कि आप साइकिल मत कीजिए क्योंकि आपके नी में पेन है. आपको सर्वाइकल एक अनादर फीवर है क्योंकि कंप्यूटर में काम करके सबको ये डेवलप हो जाता है. सो डॉक्टर से कि नो, डोंट डू साइकिलिंग, डोंट डू सूर्य नमस्कार, डोंट डू दिस बिकॉज दैट विल कॉज यू मोर डैमेज. क्या कहेंगे आप इस पे? देयर इज सो मच ऑफ एडिक्शन, एंड स्पेशली जो पढ़े लिखे सेक्शन है बड़े शहरों में, तो कोई भी बीमारी से अछूता नहीं है. वो हर आदमी बीमार हो जाएगा जो अपना केयर नहीं करेगा. और आपके माध्यम से एक मैं संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप इंसान हैं तो बीमारी आपका साथी है, वो आएगा. इसको दूर रखने का एक ही इलाज है, गुड न्यूट्रिशन, गुड हैबिट्स, रेगुलर एक्सरसाइज
and aware about your problem. Share with your parents, families, friends. थैंक यू। जो आपने अभी बात की उससे पे हम थोड़ा और ज्यादा फोकस करेंगे कि हेल्थ केयर इन रिमोट प्लेसेस इज अ चैलेंज। जैसे अभी आपने कहा कि एक्सरे निकलवाने के लिए उनको 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, तो इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है वो बदलना आसान नहीं है। हेल्थ रिलेटेड जो चैलेंजेस है वो बदलना शायद थोड़ा फार फ्लंग ड्रीम है कहिए। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया आपने मेंशन किया है कि एक्सपोजर टू सोशल मीडिया, टू मॉडर्नाइजेशन, टू ग्लोबलाइजेशन, इन सब चीजों से लोग जो नहीं करना चाहिए वो पहले कर रहे हैं। अभी स्मार्टफोन सभी के पास आ गया है, तो इन लोगों के, लेकिन मैं खुद एक कार्य में इन्वॉल्व हूँ सर, जहाँ पे हम भी कैंप वगैरह में कुछ वॉलंटरी सर्विस करते हैं। हमने देखा है कि बेंगलुरु सिटी से हार्डली 20 किलोमीटर जाते हैं हम, तो वहां पे रोड भी नहीं है और अस्पताल भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, कोई किसी तरह की मेडिकल सर्विस नहीं है। हम एवरी संडे जाते हैं, तभी उन्हें वो सुविधा मिलती है। तो ये इस ग्राउंड रियलिटी है। तो इस बात को कैसे एड्रेस किया जाए? गवर्नमेंट अपना काम करेगी, पर एज अ डॉक्टर बॉडी और एज अ जनरल हेल्थ रिलेटेड पीपल, व्हाट कैन बी डन टू रीच टू द रिमोट एरियाज? In 2023, I will only give one statement. If we cannot achieve rural health at the best in this time in India, हमें कभी मिलेगा नहीं। क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर दोबारा कब आएंगे, कब, मतलब ये इज ए ड्रीम फॉर अस। सर ने दो बातें शुरू कही, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जब कोविड अपने पीक पर था, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखा कि अब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जहां बीमार वहीं उपचार। अभी आप हॉस्पिटल मत ले आओ। तो बीएचयू से हमारे जो डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी है, उसमें डॉक्टर दीपिका जोशी, डॉक्टर आर एन चौरसिया, डॉक्टर अभिषेक पाठक, डॉक्टर वरुण सिंह, डॉक्टर आनंद कुमार, हम लोगों ने ये विचार किया कि गांव में पेशेंट मर रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, तो जैसे वो नहीं फेरी वाला होता है जो बोलता है कि डब्बा ले लो, कंघी ले लो, हमने कहा कि हम लोग फेरी वाला बन जाते हैं। अच्छा। एक नारा देते हैं कि टेम्परेचर नपवा लो, ऑक्सीजन ले लो, इसको हमने नाम दिया ऑक्सीजन फेरी वाला। एंड हम लोगों ने ऑटो रिक्शा पर 8-8 सिलेंडर लोड किया, वॉलंटियर्स थे, और 4 डेज में 72,000 पीपल का हम लोगों ने स्क्रीन किया। एंड उसमें 37 पीपल जिनको एडमिशन चाहिए था, उसी ऑटो रिक्शा पर बेड लगा के हम लोगों ने उनको ट्रांसफर किया, एंड 33 बच गए। तो ये एक मॉडल उस समय जब आया, तो वी पब्लिश इट इन इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ, इट इज पब्लिश्ड, ऑक्सीजन फेरी वाला। अच्छा। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में उस वीडियो को शो किया, जिसमें जहां बीमार वहीं उपचार। हमें लगता है कि अब पैंडेमिक जैसे चला गया, तो ये थ्योरी हम लोगों ने ऑलरेडी जॉर्ज इंस्टीट्यूट ने हम लोग को सेकंड मतलब 1 of the 5 इनोवेशन में रखा था। उसमें हमने कहा कि आईसीयू ऑन बेड्स, यू मेक आईसीयू ऑन बेड्स, दे शुड गो टू द विलेजेस। उनकी जो प्रॉब्लम है बहुत अलग है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, उनको जैसे वजाइनल इन्फेक्शंस, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, गैंग्रीन, अभी स्कैबीज, स्किन डिजीज, ये जितने भी 20 रूरल प्रॉब्लम है, इनका इलाज उसी से करा दो। तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने आयुष्मान भारत योजना दिया है, वो मतलब इट इज ए काइंड ऑफ गॉड गिफ्टेड योजना, लाखों लोग उसका उपाय उनको अच्छा मिल रहा है। अभी मैं चाहता हूं कि गांव के इंडिया के लिए एक अलग अलग उपाय हो, जिसमें 1 iPhone कैन कवर अप होल विलेज। वेरी ट्रू। उसके साथ उनको 20 डिजीज के मेडिकेशन, ज्यादा नहीं, जैसे खुजली, अभी खुजली से परेशान है, इन्फेक्शन कहीं भी, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मिर्गी,
ये कॉमन है। 10-15 बीमारी इधर, और बाकी वो जो सबसे आपने कहा ना मैटरनल हेल्थ, जी जी चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ का पूरा जी प्रोग्राम, जी अगर आप ये तो जोड़ दो तो रूरल विलेज जो एरिया, रूरल एरिया ऑल ओवर इंडिया, उनके लिए कंसेप्ट आ जाएगा। आपके माध्यम से मैं, अगर कोई गवर्नमेंट का इसको सुन रहा होगा हमारे यहाँ सुनेगा। से, जी तो मैं सुनते हैं। अनुरोध करूंगा हम्म कि हेल्थ मिनिस्ट्री को हम्म गांव के लिए एक अलग सेगमेंट, हम्म, गांव की बीमारी आपके द्वार इलाज, उसका इलाज आपके द्वार, हजार, गांव का बीमार इलाज आपके द्वार। हम्म, अभी लीजिए 20 मरीज का, 20 बीमारी का इलाज तुरंत लीजिए। जी। इसके बाद कुछ हो तो आप वहाँ मेन सेंटर में हेल्थ आइए। सेंटर लेके आ सकते हैं। हाँ, आयुष्मान कार्ड आपको दे दिया है, जी, अभी मरीजों के लिए एम्बुलेंस दे दिया है, आप आने की जरूरत नहीं है। आप, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम होगा। मॉडल काम और करेगा। जिस सर एक कारण ये भी आपसे बात करने का, क्योंकि मैं आपका काम बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ, और इसलिए मैंने सोचा कि ये विषय जो आपसे बात करना है वो कोई केवल एपिलेप्सी या ऐसी इस पे बात नहीं करनी थी। मुझे आज नहीं नहीं, बहुत। ये आपने बहुत बहुत अच्छी बात की, गांव का जो आपने विलेज का बताया। जी तो जी मैं, जैसे आपको जो लोग सुनेंगे, जी सर। उनको जब आप कहिएगा कि भाई चित्रकूट में देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल गांव में है, पांच एग्जैक्टली। हजार बिस्तर है मैडम, बिल्कुल। क्रेडिटेबल, मतलब ग्रेट। एंड दे आर डूइंग इट कमेंडेबल जॉब ट्रू। एज ए शिष्य ऑफ स्वामी जी। स्वामी जी, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा सर, आगे एक और इसमें जोड़ते अपनी बातचीत हो ही रही है। जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं दी है, और अभी एक सबसे बड़ी सुविधा जो सबको पता है वो है जन औषधि, जिसमें काफी सब्सिडाइज रेट में हर तरह का मेडिसिन मिल रहा है। एज अ लेमैन, एज अ नॉन मेडिकल पर्सन, मेरी चॉइस जन औषधि की दवाइयाँ नहीं होती है। मैं चाहती हूँ जहाँ पे मुझे वो स्टैंडर्ड थोड़ी महंगी दवाई मिले, क्योंकि मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि दैट विल एक्ट बेटर देन द जन औषधि मेडिसिन। तो हाउ टू इंश्योर पीपल कि नहीं ये भी उतना इफेक्टिव है। एवरी गुड थिंग हैव ए प्रॉब्लम टू स्टार्ट। हम्म, सो व्हेन जन औषधि केम ऑलमोस्ट 7-8 ईयर बैक, वो चल नहीं पाया। चलने को तो अमिताभ बच्चन भी शुरू में नहीं चल पाए थे, बाद में चले। प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे कोई प्रोग्राम शुरू हुआ जन औषधि का, तो गवर्नमेंट को एक चीज चाहिए था कि जन औषधि के बड़े बड़े ट्रायल्स करा देते, ट्रायल्स करा करके इंटरनेशनल जर्नल्स में अगर छपते। आज भी मैं कहता हूं कि जैसे जन औषधि की जो दवाइयां हैं, ये कि सबके मन में, हमारे मन में भी होगा, आपके मन में भी होगा कि क्या ये सही हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि गवर्नमेंट को पूरी फार्मेसी, फार्मा इंडस्ट्री पूरे देश में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बिल्कुल। ये कितने देशों का इकोनॉमी चलाती होगी, जी। और पूरे दुनिया में इंडियन फार्मा की बहुत जय जयकार है। हम्म। लेकिन जब आती है जौन औषधि की बात, तो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। थोड़ी तो भ्रांति। उसके लिए मैं यही कहूंगा कि भ्रांतियां न रख करके जन औषधि के लिए भारत सरकार को पूरे देश में, आजकल देखिए पूरे देश में कितने एम्स खुल गए, हम्म नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हम्म, बीएचयू है, और तमाम जगह और हैं। जी। अच्छे रिसर्चर्स को 20-30 सेंटर्स को लेके हर दवाई के बारे में एक स्टडी करा दीजिए अलग से, और और वो इंटरनेशनल पब्लिकेशन जानी चाहिए, जैसे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, लैंसेट है, ग्रीन न्यूरोलॉजी है। एक बार जब वहां पब्लिश होती है तो उसकी बहुत वैल्यू होती है, एंडोर्समेंट हो जाएगा। तो इंडोर्समेंट होता है। और हम चाहते हैं कि जन औषधि का इंडोर्समेंट इस तरह से हो कि जैसे हमने आपसे कहा कि गांव गांव दवाई दवाई, वो आप जन औषधि ही तो भेज रहे हैं, भेज रहे जी। गांव का आदमी ठीक हो रहा है, शहर का आदमी नहीं ठीक होगा, ये बिल्कुल, क्यों नहीं। ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों को चूंकि फ्रीडम है दवाई हाँ खरीदने का, हाँ। तो लोग अलग अलग खरीद लेते हैं। जन औषधि बहुत जगह जहाँ खुली थी वहां बंद भी हो गई हाँ इसी जी कारण से। जी जी जी। कारण यह है कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, लेकिन जो उसके पॉलिसी को फॉलो करने का जिनके ऊपर जिम्मा है, उनको और आगे आना चाहिए। जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनको आगे आना चाहिए, इसके बारे में रिसर्च करानी चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। सर हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो भी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, जैसे आपसे बात कर रहे हैं, तो ये जो मुद्दे आप उठाते हैं ना, जो कि सॉल्यूशन करके हैं, इसको हम अलग से एक स्लाइड बना के इस इंटरव्यू के साथ सामने लगा देते हैं,
ताकि जो भी कोई देखता है तो उसको पहले ये दिखता है कि इसमें किस चीज पे फोकस किया गया है। मैं आपके इसी पॉइंट को और जोर देके कहूंगा कि आप जो पॉइंट लगाइएगा उसमें एक पॉइंट पहले ये लगाइए कि प्रधानमंत्री जी को पूरे देश की तरफ से पहले प्रणाम है कि उन्होंने आयुष्मान भारत लॉन्च किया। देखिए क्या है, आयुष्मान भारत से पूरे देश में जो फायदा हो रहा है ना, सर। उसका आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को जरूर मिलेगा, पूरे देश के गरीबों की ओर से मिलेगा। मैं ऐसे ऐसे मरीज हैं जिनके बारे में मैं अभी बताना बहुत लंबा पड़ेगा, कभी और उसके बारे में आप चर्चा करिएगा। जरूर जरूर। लेकिन उसी के साथ ये जो जन औषधि वाली बात मैं कह रहा हूँ, वो उसी का अटैचमेंट बोल रहा हूँ कि वो नहीं चल पाया। कारण रिसर्च, रिसर्च एविडेंस बेस्ड डाटा। इस होना चाहिए एब्सोल्युटली। जी सर, प्रधानमंत्री जी को केवल आशीर्वाद नहीं सर, जैसे आपने कहा कि ये तो एक हमारा यहाँ ड्रीम कम ट्रू है कि ऐसा कोई व्यक्ति ऐसे पोजीशन में है कि जो पॉलिसी बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हर एक व्यक्ति को उसका फायदा मिल रहा है। अब माने ना माने बात अलग है, पर फायदा हर कोई उठा रहा है, ये बात तो बिल्कुल हर सच। कोई, एवरीवन, एवरीबॉडी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सबका सबका। रीजन, स्टेट, कोई फर्क नहीं है, सबको सब कुछ मिल रहा है। सर, थोड़ी और ना अच्छी लगने वाली बात कर लेते हैं कि हम भारत देश, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, इसके बारे में बहुत हमें अभिमान है, गर्व है। तो उसमें और एक काम आता है, वो है आयुर्वेद, जो कि हमारा एक सबसे बड़ा ट्रेजर है। और हम लोग पहले आयुर्वेद ही ट्रीटमेंट था और उसी से लोग अच्छे खासे ठीक होने से अच्छा उनको एक क्योर में प्रिकॉशनरी मेजर मिलता था। लेकिन अभी जो एक स्टैंडर्ड फाइट उठ रहा है, जो हम सुनते भी है कि आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथी। सो सर, ये दो चीजों में आपका क्या राय होगी कि आयुर्वेद कब ले, एलोपैथी कब ले, और दोनों भी चीजें हमारे बेनिफिट के लिए, इसके बारे में भी कुछ आप बोलेंगे तो ठीक रहेगा। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूट में ट्रेंड हुआ हूँ हम्म, जो पूरे दुनिया में अकेला इंस्टीट्यूट है जहाँ मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद हम्म, दोनों की फैकल्टी एक साथ काम करती है। वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बीएचयू। जी, बीएचयू का जो आयुर्वेद है उस पर पूरे देश को, पूरे दुनिया को गर्व है। मुझे भी गर्व है और गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो देश देश को आयुर्वेद जो दिया है वो किसी और ने नहीं दिया है। आपको मैं दो तीन बातें बताऊं। प्रोफेसर रामहर्ष सिंह, काय चिकित्सा में इतना बड़ा नाम हम्म, बहुत कम कोई मिलेगा। हम्म, सर को पद्मश्री मिला। सर ने अपना पूरा जीवन काय चिकित्सा में, जिसको मतलब इलाज के लिए तरह तरह की जो दवाइयां, जिन दवाइयों के बारे में आप बात कर रही थी, आपका बुखार भी उतर जाता अगर आप आयुर्वेद लेती रहती हैं, जी, और वो भी उतरता बिगर साइड इफेक्ट के। जी, हम हर चीज में जल्दी चाहते हैं, हाँ, अभी जल्दी का तकलीफ अलग होता है। जी, जैसे एक बीमारी है एनल फिशर और हेमोराइड्स, जिसमें पाइल्स, हाँ, जी, उसके इलाज के लिए प्रोफेसर मनोरंजन साहू, जो आयुर्वेद के हमारे सर्जन रहे, उन्होंने ऐसी थ्रेड बनाई, आयुर्वेदिक थ्रेड, हम्म, जो पूरे दुनिया में यूज होता है। वो सर्जरी न करके वो थ्रेड से बांध देते हैं। सर अच्छा, को पद्मश्री मिली, एंड सर इज द पाइनियर इन क्षार सूत्र, इसको कहते हैं क्षार सूत्र। ये आयुर्वेद की वो पद्धति जिसमें फिशर को और ये हेमोराइड्स हेमराइड के, को, हाँ, पाइल्स को, हाँ, आप ऑपरेट कराते रह जाइए वो ठीक नहीं होगा। आप क्षार सूत्र हुआ, ठीक हो गया पेशेंट। तो ये मैजिक नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है। प्रोफेसर जीपी दुबे अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। अभी हमारे 2 महीने पहले एक ही दिन प्रोफेसर रामहर्ष सिंह और प्रोफेसर जीपी दुबे की डेथ हो गई। एक 85 ईयर के थे, एक 87 ईयर के थे। दोनों महर्षि थे। मतलब प्रोफेसर जीपी दुबे ने एक दवा आती है बकोपा, ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मी से कैसा काम ब्रेन का, मतलब मेरे पेशेंट्स, मैं स्वयं ब्राह्मी पिया हूँ। ब्राह्मी औषधि की तरह मैंने खुद भी लिया है, मैं खुद भी उसका इफेक्ट मैंने देखा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं हाँ, वो केवल नेगेटिव लोग हैं, उनसे बात न करिए तो अच्छा। आयुर्वेद पर इंडिया को गर्व होना चाहिए, और मुझे गर्व है कि मैं उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ जहां मेरे साथ आयुर्वेद और हम लोग बड़े हुए हैं साथ साथ। और फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद जो बीएचयू की है, वो एक तरीके से जननी है पूरे देश में आयुर्वेद की।
तो कभी भी आपको ऐसी बात लगे, आप हमारे आयुर्वेद की कोई फैकल्टी से बात करिएगा। हमारे प्रोफेसर आनंद चौधरी हैं, ही इज रस शास्त्र जो फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोलॉजी ऑफ आयुर्वेद, ही इज एक्सपर्ट इन द मेटल्स। तो बहुत एक्सपर्ट्स हैं हमारे, तो आई एम प्राउड ऑफ इट। लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज है, वो लोग बहुत एंडोर्समेंट करते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स का। और मैंने बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के साथ संपर्क हुआ है, और काम भी किया है और बात भी करते। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा, जो लोअर मिड क्लास के जो पेशेंट्स उनके पास आते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर टोबैको एडिक्ट, जो वो मुंह में गुटखा दबा के सारा दिन काम करते रहते हैं। और उन लोगों को ये सीवियर हार्ट अटैक होना, कार्डियक अरेस्ट होना, ये चीजें जो है उसी कारण होती है। पर आप देखिए, हर एक गली नुक्कड़ दुकान में आपको वो तंबाकू के सैचेट मिल जाते हैं, और हर दूसरा आदमी हम देखते हैं मुंह में दबा के काम करता रहता है। तो इस बात को, इज इट जस्टिफाइड? पहली बात कि जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज है उसको एंडोर्स कर रहे हैं, एक। और दूसरा, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? मैं आपको ये बताऊं कि मैं उसी लैंड से आता हूं जहां पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा माउथ कैंसर होता है, हाँ जी। उत्तर प्रदेश। जी। और उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, हर दूसरे गली नुक्कड़ पर कैंसर के हॉस्पिटल खुल गए। वहां टाटा मेमोरियल को वहां खोलना पड़ा अपना ब्रांच, इतने ज्यादा कैंसर वहां है। कारण ये है कि जो बड़े लोग हैं इस देश में, वाकई में ये जैसे कहते हैं ना, बिना लगाम के हो गए हैं। तो इनके ऊपर लगाम, जो अथॉरिटी है, वो देखिए हम आम जनता के पास या आम चिकित्सक के पास नहीं है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को अनुरोध करूंगा, सुप्रीम कोर्ट को ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी प्रतिबंध, और कम से कम ऐसा कर दें कि 1 साल तक आप कोई फिल्म एंडोर्स नहीं कर सकते, 1 साल तक आप मैच नहीं खेल सकते। 1 साल का कुछ प्रतिबंध कर दें, 1 ईयर रूल लगा दें। देखिए कल से सब छूट जाएगा। 1 साल आपको लॉकडाउन में रहिए अपने घर, आपने कैंसर दिया पूरे देश को। इसी तरह ठंडे तेल का है, मैं कई दिन से आपने देखा होगा, आप डाल रहे हैं। मैंने बहुत अनुरोध किया है, इधर ठंडे तेल लगा के लोगों की आंख की रोशनी कम हो रही है। जी जी। तो कारण यह है कि ऐसे लोगों के लिए जिम्मेदारी कोई तय होनी चाहिए। पर इसका अवेयरनेस होना बहुत आवश्यक है, और इसके बारे में कुछ बातचीत होना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में जरूर बातचीत होनी चाहिए। और एक जो मुझे याद आता है कि कई छोटे बड़े फिल्म बनी है इस पर, लेकिन जिनको आदत लग जाती है वो छोड़ नहीं पाते, बोल नहीं पाते। उनको कैंसर शरीर छुड़ा देता है। जी ये जी बहुत सर। दुखद है। जी सर। जी सर। अब सर, लास्ट प्रश्न। मेंटल इंस्टेबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टू कॉस्मोपॉलिटन सिटीज एनीमोर। अभी आप देखिए, छोटे गांव में, 2 टायर 3 टायर सिटीज में भी, और देहातों में भी ये चीज देखने को मिलती, जो कि पहले नहीं थी। तो सर, इसका क्या इलाज होना चाहिए? देखिए 2 घटनाएं सबको याद होगी। एक तो काठमांडू में राज परिवार में देखा होगा आपने, उनके जो राजकुमार थे उन्होंने सभी को गोली से मार दिया। दूसरा, कई जगह गांव में अगर आपने देखा होगा या शहरों में भी देखा होगा, कई लोग अपना जान दे देते हैं अंधविश्वास में। जैसे उनका अंधविश्वास हो जाता है, फिर पूजा पाठ। अब ये सब मेंटल स्टेबिलिटी के ही प्रॉब्लम है। उसमें क्या है कि सबसे बड़ा इंस्टेबिलिटी ये है कि जो फैमिली है, जो ब्रोकन फैमिली है, या जो अनस्टेबल फैमिली, या जिसके घर मेंटल इलनेस की जो हिस्ट्री रही है, तो जेनेटिक बैकग्राउंड भी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वायरमेंट, जो हमारे यह तरफ जो पूरा आप कुछ भी गलत करते हो महानगर में, शहरों में वो वीडियो 100 बार देखा, 200 बार देखा। जैसे कोई मॉब लिंचिंग है आजकल, एक वो तरह तरह के हीनियस क्राइम के वीडियो ट्वीट होते हैं। उधर तो पत्रकार या नेता या अभिनेता करके भूल गए, लेकिन उनका इम्पैक्ट गांव में कितना बुरा है। तो ऐसे ही गांव में मैंने, जहां मैं काम करता हूं, कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया
कि जैसे आप कोई एक परिवार को हत्या कर दिया, फिर दूसरा के दूसरे परिवार को हत्या कर दिया, फिर गर्ल्स के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, मॉलेस्टेशन से लेकर के हर तरह की क्राइम, ये टीनेज बच्चों के साथ, इवन जो बच्चे छोटे हैं, लड़के हो चाहे लड़की, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये मेंटल इंस्टेबिलिटी के कारण ही है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अभी मानस टेली हेल्प शुरू किया है निमहैंस और इभास दिल्ली के साथ, जिसमें एनीवन कैन रिंग टू द फोन नंबर। सो अभी लॉन्च हुआ है, अभी मनसुख मांडविया जी ने उसको लॉन्च किया, अभी उसका 1 ईयर से भी काम आगे बढ़ गया। इट इज वेरी गुड टेलीपोर्टल, anyone can ring on the Manas teleportal and they can take help for the psychiatric illness और mental problem। तो मुझे लगता है कि मेंटल प्रॉब्लम आधी से ज्यादा तो इसलिए बड़ी होती है क्योंकि हम छिपाते हैं। छिपाना नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम, उसका इलाज होना है। और प्रोफेसर संजय गुप्ता हमारे यहाँ बीएचयू में है, वो एक प्रोग्राम चलाते हैं खुशहाली, उनको कहते हैं खुशहाली गुरु। वो कहते हैं खुश रहो, पहला काम खुश रहो। वो खूब हंसाते हैं, कैंप करते हैं, फिर इट टेक्स अ प्लेज कि दुखी भी है तो हम इससे बाहर आएंगे, हम लड़ेंगे, हम बाहर आएंगे। तो वी हैव टू फाइट इन यूनिटी। और हमें बच्चों को फेल्योर सिखाना चाहिए कि फेल्योर आर द पार्ट ऑफ लाइफ। मैं तो कहता हूँ जो लोग फेल होते हैं ना, वो गुरु की तरह होते हैं, वो बताते हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो फेल्योर आर पार्ट ऑफ लाइफ। सर अभी हम वाइंड अप करेंगे, पर आखिरी लास्ट मैसेज, next 25 years and further down also, as a common health index for the entire nation, what is that people should look into as a holistic approach? I had a strong belief and faith that the way our government of India, health ministry is coming up with a lot of new institutes, good education, and our National Medical Council is coming up with new education policy where undergraduate and postgraduate education for the doctors have been changed, which have become more individual-based, society-based. So I feel our country is going to become one of the best in medical science, and I feel that by the time I reach 80, India will be one of the best in world. It was wonderful talking to you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद।